नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद की एक दीनी दरसगाह जामियतुल मोमिनात की जानिब से चारमीनार के दामन वाले इलाके में वाक़े उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में आज एक रोज़ा ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस इस्लाम ही ख़वातीन का हकीकी मुहाफिज है का एहतमाम किया गया। दुनिया के मशहूर मुल्क इराक़ के बगदाद से तशरीफ लाए बारगाह हज़रत बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन शेखुल हज़रत सैयद पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी ने वहाँ पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस्लाम के बहुत सारे नुकात से सभी को वाकिफ करवाया और आलम इस्लाम में अमन के लिए दुआएं की। जबकि उस कॉन्फ्रेंस में मुकामी और बैरूनी बहुत सारे मंदूबीन ने भी शिरकत करते हुए इस्लाम के बहुत सारे रमूज पर से पर्दा उठाया, जिनमें ख़ास तौर पर शामिल रहे तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs मुमताज़ अहमद खान और अहमद पाशा खादरी और इनके साथ साथ मजलिस पार्टी के कई सुदूर मुतमदीन और पार्टी के सैकड़ों कारकुन ने भी वहां पर शिरकत की। When the Sayyidina Jibreel alayhi salam, you visit him in the cave, in the Ghar Hira. When he went back to the home, he was shaking. He said, I want a blanket. I feel cold. She gave him a blanket. One, he asked for second. She gave him second. He asked for third. She said to him, my husband, you are not sick because you are like a fever or you feel a cold, but you are sick for something else, feeling like ruhaniyat sickness. Can you tell me what happened to you? He tell her all the story. She left him. She went to the 3-4 house. She know them. They have a knowledge. Till she find the biggest knowledge in the city that time. His name is Al-Arqam. She went to him. She tell him what he have mentioned to her. Then he said, I know now about your husband, he will be a star in the sky and his place, he will be a prophet of this time. She went back and she said, my husband, I know today what you are, and I will be the first woman to follow you and to push you to go ahead more. So she was Sayyidatna Khadijatul Kubra. There she have a place, but Allah subhanahu wa ta'ala, He wants still to show the Sayyidina Rasulullah what is the maqam, what is the place of the Khadija. Otherwise, maybe other women, other wife, she will say, no, my husband, please do not go again. We have children, we want to save, we're scared, we are worried about you. But she say, no, I will be the first woman after you to push you to go more head and head. This is the maqam of the wife of Sayyidina Rasulullah, Sayyidah Khadija Ummahatul Muslimin. Now in the Holy Quran, everybody Sayyidatna Hajar alayhi salam. Today we want to talk about the Sunnah and the Quran. What is the place of the woman and how we should respect and how Allah subhanahu wa ta'ala bless the woman and give her that responsibility. In the Holy Quran, there is a lot, the biggest story about the woman, and they give her a name. Even in our book of the Quran, there is one full chapter, ayah, belong to the woman names, called Sayyidah Maryam alayhi salam. Sayyidah Maryam, she is a waliya. She is not in the Prophet state. She is a waliya from the awliya and the salih. But her khala husband Sayyidina Zakaria, he was a prophet. But always Allah gave her a blessing, and when she used to sit alone in her place called mihrab with a hijab, nobody can see her. Allah bless her with a lot of food. The food winter time, and that time it was summer times.
So when Sayyidina Zakaria, in the Holy Quran, he asked her, Inna laki hada ya Maryam, huwa min indullah, inna Allah yarzuqu man yasha'a bighayri hisab. She asked him, he's from Allah. Allah, when they want to give, they will give without any time. The day when she was not there, he went there. And that it was in the month of the Sha'ban. आज खास तौर से हजरत सैयद पीर आशमुद्दीन साहब गिलानी शुक्ला रहमतुल्लाह अलैह के पर उनके इस्तेमाल के लिए आज हम लोग सब जमा हुए हैं। यकीनन बुजुर्गान दीन का बहुत एहतराम करते हैं और हमारे जितने वलियों के वली है तो गिलानी पीर रहमतुल्लाह अलैह। और हिंदुस्तान में जितना भी इस्लाम फैला है पीरों की वजह से फैला है, उनके करामात की वजह से, उनकी तालीम की वजह से। यकीनन हम उनका एहतराम करना चाहिए। और आज हिंदुस्तान में सारे जगह अगर कहीं झंडे लहराते हैं तो पीर रहमतुल्लाह अलैह के झंडे लहराते हैं। उनके लिए लोग मन्नतें करते हैं, मुरादें करते हैं और उन बुजुर्गों से हमारे मुरादें पूरी होती है। उनका हम जितना भी एहतराम करें, उनके जो अफराद खानदान का, उनके मुतवलियों का वहाँ पर फर्ज बनता है। और जामअतुल मोमिनात एक ऐसा इदारा है जहाँ पर बहुत अच्छी तालीम भी दी जाती है, उनकी तरबियत भी दी जाती है और बुजुर्गों के एहतराम के बारे में उन्हें बताया भी जाता है। तो आज हम उनके एहतराम के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए उनका वेलकम के लिए। और हमारे यहाँ के मुकामी अब्दुल अजीज एमएलए जनाब मुमताज अहमद खान साहब, याकूबपुरा के जो एमएलए जो मजलिस के बहुत सीनियर लीडर है जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब और हमारे मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब और डैश पर बैठे हुए मेरे तमाम मचाहिर उलमा और बुजुर्गों। यकीनन आज की इस महफिल में खासतौर से पूरे खवातीन मौजूद है, इसलिए खवातीन के बारे में बात की जाए तो बेहतर है। आज हमारे माशरे के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है और खवातीन की अज़वाज जिंदगी का मसला है। मैं चूंकि होम मिनिस्टर मुझे अहदा दिया गया है, मैं जहां भी जब डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं तो जब पुलिस की मीटिंग बुलाता हूं तो तमाम पुलिस के अहदेदार आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आपके पास ज्यादा केसेस कौन से, क्योंकि मुझे लैंड ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो कहते हैं कि साहब मैक्सिमम केसेस फैमिली मैटर के केसेस है साहब, मियाँ बीवी के तरह। तो चूंकि आज हमारी बहनें हैं, मैं कहना चाहता हूँ इंसान को जिंदगी में दो चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। एक है सब्र की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हमेशा कहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला उन्हीं के साथ रहता है जो सब्र करे। दूसरे अखलाक भी होना चाहिए, अखलाक की भी बहुत अहमियत थी। अखलाक के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसी उनकी हदीस है। एक शख्स सरकार द्वारा के पास गया कि कहा कि एक औरत के साथ सरकार द्वारा वो बहुत देर जरूरत है, पंजों नमाजी है, ताज्जुद गुजार है और कुरान की हमेशा तिलावत करते रहती है। और छोटी सी असामी है कि पड़ोसी के लोगों से हमेशा तकरार करते रहती है छोटी छोटी बात पर। तो क्या इस औरत को जन्नत मिलेगी? तो मेरे प्यारे नबी ने कहा नहीं मिलेगी। जब उसकी अखलाक दुरुस्त नहीं है, पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखती है, तो जन्नत की अखलाक भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना भी इल्म हासिल करो, जितने भी तिलावत करो, कितने भी आप नमाज़ें पढ़े और आपके अखलाक अच्छे नहीं रहेंगे तो क़यामत में बख्शिश नहीं है। इसलिए मैं बहनों से कहता हूँ कि हमारे अखलाक अच्छे हो, हम पर सबर हो तो घर की जिंदगी अच्छी चल सकती है। मुझे बड़ा अफसोस भी होता है मुस्लिम माशरे के अंदर सास और बहू के बड़े पंचायत होते हैं और सास को मां नहीं समझती है और सास बहू को अपनी बेटी नहीं समझती है। इसकी क्या वजह मुझे आज तक समझ में नहीं आता। हम लोग प्यार मोहब्बत से अगर जिंदगी गुजारेंगे तो खुशहाल जिंदगी गुजर सकती है। अखलाक के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तालीम दी गई है तो इस्लाम में दी गई है। प्यारे नबी हमेशा और खासतौर से खिदमत खल्क के बारे में भी कई हदीस आ चुके हैं। मस्जिद नबी में सहाबा इत्तिकाफ बैठे थे तो बीच में एक साहबी कोई शख्स उनके पास आया, कहा कि आप चलने से मेरा काम बन सकता है। तो उन्होंने इत्तिकाफ छोड़कर इत्तिकाफ में से ही लोगों से इजाजत लेकर कहा कि मैं एक शख्स का काम है, मैं काम करके आना चाहता हूँ।
तो लोगों ने दूसरे साथियों ने इसकी नाराजगी का इजहार किया। जब वापिस आने के बाद इंतजाम खत्म होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये बताया गया कि एक साहबी जो इंतजाम की हालत में बाहर जाकर आया, बताइए इसके बारे में क्या हो सकता है। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि किसी का काम था इसलिए मैं गया। तो उन्होंने सरकार द्वारा ने उसकी सताइश की कि दुनिया में सबसे अहम चीज है तो मखलूक की खिदमत करना है, तो उसके लिए इस्लाम में बहुत अच्छे हदीस आ चुके हैं। सैयद आशरुद्दीन जिलानी मदनी सजादा नशीन बारगाह जिलाने के होगा खुसूसी और तफसीली किताब होगा। मैं सिर्फ चंद लम्हे आपसे दर्ज करके मुस्तर चुका हूँ। तमाम मज़ाहिब में इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने औरत को एक बुलंद मुकाम अता किया, उसके रुतबे को बुलंद किया, उसकी अजमत को बताया कि औरत का मुकाम इस्लाम में क्या है। जो लोग इस्लामी तालीमात पर अमल पैदा होकर दायरे शरीयत में अपनी जिंदगियों को ढाल देते हैं, उनके लिए इस्लामी तालीमात उनके लिए ढाल बन जाती है। ये वो वाहिद मजहब है इस्लाम जिसमें औरत का जो आखिरी दर्जा है वो फजीलत माँ और तकद्दुस माँ दर्जा माँ का दर्जा है। और इसके ताल्लुक से मुताबिक रिवायतें हदीस और इर्शादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किस तरीके से औरत को इस तकद्दुस माँ रुतबे पे जब वो माँ के रुतबे पर कायम होती है तो अल्लाह ताला ने उसके मुकाम को बुलंद फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातेह मक्का होकर मक्के में तशरीफ लाते हैं तो एक सहाबी रसूल ने सरकार से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नियत की थी कि जब हम फातेह मक्का होकर मक्के में दाखिल होंगे तो मैंने नियत की थी कि फातेह की हैसियत से जब हम दाखिल होंगे तो काबे की चौखट को पहुंचा दें। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने अपनी नीयत का इजहार किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी माँ के कदमों को पहुंचा दो, तुम्हारी नीयत हुई। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शराब की दुकानात के ढेर सारे लाइसेंस जारी करने वाले माहौल में खुद रियासती पुलिस ने आज हैदराबाद में डुप्लीकेट शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस कुछ लोगों पर हाथ डाला और बतलाया कि मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों के लेबल्स के साथ ये लोग शराब फरोख्त कर रहे थे और इनके पास से मुख्तलिफ डुप्लीकेट लेबल्स वाली कई शराब की बॉटल्स को जब्त कर लिया। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास और ACP गोशा महल M नरेंद्र रेड्डी के रास निगरानी में इंस्पेक्टर हबीबनगर A शिवचंद्रा ने अपने स्टाफ के हमरा दारुस्सलाम के इलाके में वाक़े SD नगर में धावा करते हुए M बालामनी और M बालाकृष्णा के इस कारोबार का पर्दाफाश किया और उनके पास से सैकड़ों ब्रांडेड डुप्लीकेट लेबल्स वाले शराब के बॉटल्स जब्त करते हुए मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है। मैं शिवचंद्रा इंस्पेक्टर हबीबनगर आज रात में मैं
मेरा वो ASI शंकरलाल को एक इंफॉर्मेशन आ गया। वो इंफॉर्मेशन का बारे में हमारा पेट्रोलिंग स्टाफ पूरा मिलके स्वामी दयानंद नगर जाके चेक करे। उधर वो M बालमणि, मंदीपला बालमणि और मंदीपला बालकृष्ण गौड़, दो आदमी वो इनका घर का सामने वो बेच रहा है, वो वाइन बॉटल्स बेच रहा है। उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन को लेके आया, वो पूरा बॉटल के साथ लेके आया, उनका ऊपर में केस डाल दिए। और एक इंफॉर्मेशन आ गया, और राजरला साई बाबा बोल के कट्टमैसम्मा टेम्पल के बाजू में रहते इन्हों भी वो वाइन बॉटल्स बेच रहा बोल के इंफॉर्मेशन आ गया। उसके लिए भी इंक्वायरी करा, उसके लिए भी उनको भी पकड़ के लाया। उनके साथ भी बॉटल्स मिल गए, ये वाइन बॉटल्स। वो दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस करते, बाद में हमारा SI इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और चार्जशीट डालते। सीज किया अमाउंट कितना है साहब इसका? ये टोटल अमाउंट बोले तो स्वामी दयानंद नगर में और ज़्यादा बॉटल वो थोड़ा इंक्वायरी करके बोलना पड़ता। पूरा बॉटल का MRP कितना है, ऐसा MRP कितना है, तो MRP का ज़्यादा उन्होंने पैसा लेके बेचते। उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये कर लेते, उन्होंने ऐसा कर रहा है। इन लोग के ऊपर पहले के कुछ केसेस है क्या सर? पहले के ऊपर केसेस नहीं है, इनके ऊपर अभी केस है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिका MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने साबिका कांग्रेसी वजीर जी प्रसाद कुमार के साथ एक प्रेस मीट में TRS गवर्नमेंट के जेर असर रियासत के हालात दिवालिया हो जाने वाले माहौल में बतलाया कि इंतशार वाले आज के माहौल में TSRTC वालों की हड़ताल महीने भर से ज़्यादा दिन ले चुकी है और हुकूमत अवाम की परेशानियों का कोई हल निकालने से कासिर रही है, और इस तरह से ये दौर तारीख में एक काला धब्बा बनने जा रहा है। RTC को खानियाने के मंसूबे के तहत हुकूमत के पास कोई मजबूत प्लान ही नहीं है कि कौन सी प्राइवेट रूट और कौन सी रूट RTC बसेस के लिए दी जाएंगी। लिहाजा अवाम के साथ हमदर्दी का ढोंग रचाने वाले CM KCR की हुकूमत अब खुद ही डामाडोल हो गई है। परसों RTC यूनियन मीटिंग लगा के अनाउंस करे कि उन लोगों का पहला और मेन डिमांड जो है गवर्नमेंट में इसको मिला के गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाने मर्ज करने का डिमांड उन लोगों वापस ले लिए। तो इससे अपन समझ सकते कि KCR साहब का, CM साहब का एक बड़ा विक्ट्री हो गया। KCR साहब इसमें जीत गया। ये जीत हार के समस्या नहीं है, उन्हें तो एक पहले सबसे बड़ा डिमांड वापस ले लिया, अब जीत लिए समझो। पर क्या कीमत से जीत लिए? कितने लोग मर गए, कितने लोग रोड पे आ गए। ये सब सोच के आप अभी से उतना टफ स्टैंड नहीं लेना बोल के हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप अभी तो एक हमारे तेलंगाना के अवाम है, तेलंगाना के खानदाना है, एक 48,000 फैमिलीज का फ्यूचर का सवाल है ये। तो ये सब देख के आप थोड़ा उन लोगों को पास लेना, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं। पास लेके उन लोगों को इतना सीरियस और टफ एक्शन उन लोगों के ऊपर नहीं लेना बोल के हम पूछ रहे हैं। अगर कोई टफ एक्शन लेना है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, नहीं तो अपना डेंगू के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर, पीने का पानी के ऊपर, उन लोग वो इश्यूज में टफ स्टैंड ले। मगर ये खानदानों के ऊपर, तेलंगाना के अवाम के ऊपर टफ स्टैंड आप मत लेना। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, यही है हमारा गुजारिश। दूसरा जो है, आप अब तो हो गया, उनका मेन डिमांड वापस ले। अब आप बोलो आपका प्लान क्या है। आपका प्लान अच्छा है तो हम भी सपोर्ट करेंगे, लड़ेंगे दूसरे इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज में ऊपर, नहीं तो कालेश्वरम के ऊपर, दूसरे इश्यूज के ऊपर लड़ेंगे। पर ये इश्यूज में हम भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर आपका प्लान क्या है बताइए।
आपका प्लान वो 40,000 खानदानों के 48,000 खानदानों के लिए क्या प्लान है? आप वो रूट्स जो प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं उसका क्या प्लान है? जो लॉस मेकिंग रूट्स है, कौन प्राइवेट आदमी आके वो लॉस मेकिंग रूट्स है तो वहां पर क्या लगाते? बस लगाते, नहीं तो मेट्रो रेल लगाते। वो गांवों का प्लान क्या है? नहीं तो लॉस मेकिंग रूट्स को आप कॉम्पनसेट करते, नहीं तो लॉस मेकिंग रूट सब आरटीसी चलाना, प्रॉफिट मेकिंग रूट सब प्राइवेट चलाना। वो प्लान क्या है वो बताए तो शायद प्लान अच्छा है तो हम भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन आप किसी से नहीं सुन रहे, आईएएस ऑफिसर से नहीं सुन रहे, हाई कोर्ट जजेस जो बोले वो जुडिशियल कमेटी लगाओ, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, उन लोग उसको नहीं सुन रहे। किसको नहीं सुन रहे? यूनियंस को नहीं सुन रहे, अपोजिशन पार्टीज को नहीं सुन रहे, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को नहीं सुन रहे। कम से कम आप तो बोलो, कम से कम आके बैठो, हमारे से नहीं बैठे तो आरटीसी यूनियन से बैठो एक बार। वो तो भूल जाओ, उनला कभी भी आपके खिलाफ नहीं थे, आपके सपोर्टर्स थे, आपके बड़े फैंस थे, आपके खिलाफ नहीं लड़ रहे। पेट भूखा है बोल के लड़े तो आप समझ रहे आपके अगेंस्ट लड़ रहे बोल के, आपके अगेंस्ट नहीं, उन्हें सिर्फ बेसिक सर्विस रूल्स के लिए। और उनका स्ट्रैटेजिक सोच नहीं है उनका। उन्हें क्या बोल रहा बोलते ये डिमांड जो है, जैसा कि महिला खवातीनों कंडक्टर्स रहते हैं उन लोगों को 9 o'clock के बाद ड्यूटी नहीं डालना, नहीं तो मैटरनिटी बेनिफिट्स उन लोगों को देना, ये सब गवर्नमेंट में है। अगर ये सब आरटीसी में कॉर्पोरेशन में आप मैटरनिटी बेनिफिट्स दे, वुमेन कंडक्टर्स को 9 o'clock ड्यूटी मत दे, मोटर व्हीकल एक्ट फॉलो करो, ओवर टाइम अमल करो, ये सब जो गवर्नमेंट में इसमें करे तो ये जरूरत ही नहीं है गवर्नमेंट में मिलाने की। आखिरी बार हम ये सोच रहे कि अगर सेंटर यहाँ आए तो इसमें आके अगर इंटरफियर करे तो अपने स्टेट का नाम झुक जाता, आपका सर भी झुक जाता। आप ही सॉल्व करो इसको बोल के हम एक बार, क्योंकि उन लोग एक कदम पीछे गए। आप कभी कभी सरेंडर हुए तो वो विक्ट्री जैसा है, और आम आदमी को सरेंडर हुए तो उससे बड़ा लीडर कोई भी नहीं रहता। फिर एक बार सोच समझ के थोड़ा आगे बढ़ो, और आपका प्लान प्रेस से, नहीं तो अपोजिशन पार्टीज का मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग, नहीं तो कम से कम आर्टिस्ट लोग से मीटिंग, नहीं तो हाईकोर्ट में आपका प्लान क्या है वो बताए तो बहुत अच्छा। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के कांग्रेसी एमएलए टी जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने असेंबली हॉल की प्रेस मीट में आज ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी टीएसआरटीसी जेसी यूनियन के हड़ताली वर्कर्स का साथ दे रही है, लिहाजा इनके 19 नवंबर को रास्ता रोको एहतजाज में भी शामिल होकर संगारेड्डी की कौमी शाहरा को पार्टी वर्कर्स की जानिब से बंद कर दिया जाएगा। टीपीसीसी प्रेसिडेंट इंचार्ज पार्टी और साबिका एमपी वी हनुमंत राव ने इसका खाका तैयार कर लिया है। तेलंगाना किसी के लिए लाए, तेलंगाना पब्लिक, तेलंगाना एम्प्लॉयज खुशी से जिंदगी जीने के लिए तेलंगाना ला ले। तेलंगाना आ गया, सोनिया गांधी दे दिए, केसीआर साहब सीएम बन गए, दो बार भी सेकंड टाइम सीएम बन गए। फिर आज तक 70 साल में आज तक कोई भी इतना दिन स्ट्राइक करे नहीं। आरटीसी वाले पहली बार तेलंगाना हासिल होने के बाद, तेलंगाना सीएम बनने के बाद, तेलंगाना आरटीसी ड्राइवर्स, आरटीसी कंडक्टर्स, उनका स्टाफ कम से कम 45 डेज आज तक 45 डेज हो रहा, आज तक स्ट्राइक में है। 3 लोग सुसाइड कर लिए आरटीसी वाले, 3 लोग सुसाइड कर लिए और 20 लोग हार्ट अटैक मर गए। ये आरटीसी का जो वर्कर मुसीबत में है। ऐसा जिंदगी तेलंगाना में आता बोल के कोई भी नहीं सोचे, ऐसा आने का नहीं था। अरे हम ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना सोनिया जी कहीं को दिए आराम से जिंदगी गुजारने के लिए, तेलंगाना पब्लिक के लिए, तेलंगाना पब्लिक कुछ के लिए सोनिया गांधी जी तेलंगाना दिए हैं। मगर
आज को आरटीसी कारपोरेशन को प्राइवेट करने के लिए जो चाल चल रहा है गवर्नमेंट का, उसको गलत पकड़ रहे हैं आरटीसी वर्कर्स एंड कांग्रेस पार्टी के साथ हर एक पार्टी वाले भी उसको गलत पकड़ रहे हैं। मगर आज तक भी गवर्नमेंट एक स्टेप भी नीचे को नहीं आया, इसीलिए ये गलत रास्ते पे गवर्नमेंट जा रहा है, ये अच्छा तरीका नहीं होता। अगर मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, दुनिया को ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये दुनिया पब्लिक भी ये सोचेगी आरटीसी का जो पंचायत चल रहा है वो आरटीसी वर्करों का नहीं, आज आरटीसी का रहता। अगर आरटीसी प्राइवेट हो गए तो फिर बाद में जो आज का जो आरटीसी में गरीब लोग जो बस में फिरते हैं वो लोग को कम रेट रहता। अगर प्राइवेट हुआ तो ये डबल बढ़ जाएंगे आपको। देखो आज 50 रुपए का टिकट रहे तो वो 100 भी हो जा सकता, प्राइवेट हुआ तो 100 रुपए होता, नहीं तो 150 होता, 200 भी होता। वो प्राइवेट का सिस्टम है था, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पब्लिक भी सोचना है, आज का आरटीसी ड्राइवर कंडक्टर का मसला नहीं होता, आने वाला दिनों में भी पब्लिक का मामला हो जाएगा। जब पब्लिक जितने भी गालियां दिए तो भी फायदा नहीं है, इसलिए पब्लिक भी आरटीसी के साथ चलो, आरटीसी को गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करो, पब्लिक भी अच्छा रहता, आरटीसी वालों को भी अच्छा रहता, दुनिया को भी अच्छा रहता। इसलिए इसके लिए जो आरटीसी जेएसी 19 को हमारा बॉम्बे हाईवे पे आरटीसी जेएसी हाईवे को पूरा रास्ता रोको करो बोले, आरटीसी जेएस के हिसाब से हम भी बॉम्बे हाईवे संगारेड्डी चौरस्ते पे हम भी 2 घंटे 10 बजे से 12 बजे तक हाईवे को हम रोक दे रहे हैं। हमारा पीसीसी साहब, हमारा हनुमंतराव साहब भी इसका जो जेएसी से कोऑर्डिनेशन चल रहा है उनका भी हमारा आवाज भी दिए है। कांग्रेस पार्टी आरटीसी जेएसी के साथ उसमें सब जन शामिल होना, उस दिन 2 घंटे टाइम देना, या आने वाले दिनों में पब्लिक के लिए, आज को आरटीसी वर्करों के लिए हम वो स्ट्राइक में हम बैठ रहे हैं। और दूसरा बात है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारी खर्चों के दबे तले मुल्क के बड़े सनतकार अनिल अंबानी और दूसरे 4 अफराद ने रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर को ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को रवाना करता नोटिस में बताया गया है कि दीगर 4 डायरेक्टरों में छाया वीरानी, रैना करानी, मंजरी कक्कर और सुरेश रंगाचारी शामिल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।